How are you all? A very good morning to all of you. This is my fifth lecture on the topic the solid state. In the previous video, we discussed about the density of a unit cell, that is D, and the formula of D is Z into M upon Na into AQ, where Z means number of atom or particles present in a unit cell. For example, the value of Z for simple cubic is equal to 1, for BCC it is 2, and for FCC it is 4. Here M means molar mass or atomic mass. If we are considering molecule, then it will be molar mass, or otherwise it will be atomic mass for an atom. What means Na? Na means Avogadro number, and the value of Avogadro number is 6.022 multiplied by 10 raised to power 23. And at the last, what is A? A means adjuvant. On this basis, the numerical will be given, but हम इसके अंदर आप लोगों से 5 न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, 5 टाइप के न्यूमेरिकल. फर्स्ट वन जिसमें डेंसिटी पूछी जा सकती है, वी विल आस्क अबाउट द डेंसिटी. बट डेंसिटी अगर हम पूछते हैं तो जेड, एम, एन ए और ए क्यूब की वैल्यू आपको गिवन होगी. सेकंड केस में आई कैन आस्क अबाउट जेड. व्हाट इज जेड? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. बट वहां पर लिखा होगा व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल. तो अगर यूनिट सेल के लिए बीसीसी है तो वहां वैल्यू 2 भी आ सकती है, या नियर बाई 2 दैट इज 2.1 और 1.9. तो अगर आपकी वैल्यू जेड को कैलकुलेट करते टाइम 1.9 आ जाए या 2.1 आ जाए तो आपको क्या कंसीडर करना है? बीसीसी यूनिट सेल. सिमिलरली फॉर एफसीसी इट मे बी 3.9 और इट मे बी 4.1. तो दिस वाज द सेकंड न्यूमेरिकल. और थर्ड न्यूमेरिकल में आपसे मोलर मास या एटॉमिक मास कैलकुलेट करवाया जा सकता है. फोर्थ न्यूमेरिकल में आपसे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करवाए जा सकते हैं. और फिफ्थ न्यूमेरिकल में आपसे एच लेंथ भी पूछी जा सकती है. ऑन दिस बेसिस इस फॉर्मूला पर टोटल न्यूमेरिकल आपके पास 5 दिए जा सकते हैं, जो कि आपको शीट में गिवन है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन विच आई एम कैलकुलेटिंग द डेंसिटी. द न्यूमेरिकल इज ए एफसीसी क्यूबिक एलिमेंट. एफसीसी क्यूबिक मींस आपको गिवन है कि टाइप ऑफ यूनिट सेल एफसीसी है, और एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू आप लोगों को पता है. एंड फर्दर इट हैज सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर. इट मींस आप लोगों को एज लेंथ भी दी हुई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए 400 पिकोमीटर. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने को पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. क्यों? बिकॉज द डेंसिटी इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इट मींस नाउ इट विल बी 400 into 10 raised to power minus 10 centimeter. If we are calculating the density in kg per meter cube, then it will be 10 raised to power minus 12 meter. The third one is atomic mass of this element is given, that is 60. It means the value of m is given, that is 60. And at the last, now I have three values, that is z, that is a, and that is m. But I need 4 values, and the last one is of Avogadro number, and it is a constant. So now it is 6.022 into 10 raised to power 23. So it is clear that it is a very very simple numerical in which all the values are given. Now putting this value in the formula. Now what is D? D is equal to Z into M. What is the value of Z? Z is equal to 4. What is the value of M? M is equal to 60. Okay. Now what is Na? Na is Avogadro number, 6.022 multiplied by 10 raised to power 23. And at the last, what is the value of A? A is 400 picometer. That is 400 into 10 raised to power minus 10 centimeter cube. Now if you are solving this whole equation, the answer will be 6.23 gram per centimeter cube. Now it is the density of the crystal. So this is the first type of numerical. Second numerical के अंदर मैं आपको फिर से डेंसिटी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, बट देयर इज ए लिटिल चेंज. ओके. नाउ माय न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर. हमें सिल्वर की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है which crystallizes in FCC lattice. Again the lattice is FCC and we have the value of Z, that is equal to 4. अगर यहाँ BCC होता तो हम क्या लिख देते हैं? Z is equal to 2. The distance between two nearest atom is 287 picometer. The next information is the distance between two nearest atom. आप सोच के देखिए, 2 nearest atom है बिल्कुल पास पास, उनके बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है. And what is the distance? That is, it means R and R. और आप लोगों को पता होगा R and R is equal to 2R. अब आपके सामने
2R की वैल्यू दी हुई है और वो है कि 287 पिकोमीटर। अब आप एफसीसी लेटाइस की बात कर रहे हैं, मुझे तो एज लेंथ चाहिए थी बट इट इज R, गिवन वैल्यू ऑफ R। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R इन FCC यूनिट सेल? तो ये पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। A इज इक्वल टू 2√2R और वी कैन राइट √2 into 2R। Now what is the value of 2R? 2R की वैल्यू है 287। Now I am putting the value under the √2 into 287 and its value is 405.87 picometer. Again I will convert the picometer into centimeter। इसको वापस से सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में ये छोटा सा चेंज था, ये चलो कह सकते हैं कि छोटी सी ट्रिक थी कि आई एम नॉट गिविंग द एज लेंथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मैंने आप लोगों को आर की वैल्यू बताई और आपने आर की वैल्यू से ए की वैल्यू कैलकुलेट किया एंड द रिमेनिंग न्यूमेरिकल इज सेम। ओके, फॉर एजी द एटॉमिक मास इज 108 अप्रोक्सीमेटली, वैसे 107.9 होता है पर मैंने चलो 108 लिख दिया। एंड द लास्ट कंटेंट इज Na एंड व्हाट इज Na? As you know, Na is equal to Avogadro number. Now, what is the formula? Formula is Z into M upon Na into AQ. Okay? इसके अंदर आपके पास Z की वैल्यू 4 है, मोलर मास आपके एटॉमिक मास आपके पास 108 है, Na as you know 6.022 into 10 raised to 23 and at the last what is the value of edge length? That is 405.87 into 10 raised to minus 10 whole cube. After simplifying this numerical, our answer will be 10.72 gram per centimeter cube. This is the two numerical in which I have calculated the density of the crystal. Now my second time numerical in which I will calculate the edge length. Okay, this is our third numerical, but in notes it is on page number 16. Numerical number 17. Okay, in this numerical an element A crystallizes in FCC structure. Okay, again FCC, now it is FCC, it means Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 and calculate the edge length, it means आपको A को कैलकुलेट करना है। The density of this crystal is given, that is 7.2 gram per centimeter cube. Okay, density is given in this question, but now there is a twist. If if there are 4.12 into 10 raised to power 24 atoms are present in 200 gram of this element, it means in 200 gram of this element number of atom is equal to 4.12 into 10 raised to power 24 atoms. Now it is very much clear कि आप लोगों को 200 ग्राम के अंदर कितने एटम्स दिए हुए हैं। इट मीन्स एटॉमिक मास जो है वो इसका डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसको हम कंसर्न करेंगे मोल कंसेप्ट से या इसको कनेक्टेड करेंगे मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट में आप लोगों को बताया गया था एक मोल के अंदर जितने एटम्स होते हैं दैट इज इक्वल टू Na और Na एटम्स का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द पर्टिकुलर एटम। इट मीन्स आप 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 एटम्स का जो मास होगा वो हमेशा एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो नाउ कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द पर्टिकुलर एटम। नाउ हाउ मेनी एटम्स? The mass of 4.12 into 10 raised to power 24 atoms is equal to 200 gram. It means mass of one atom is equal to 200 upon 4.12 into 10 raised to power 24. Now in 1 mole, how many atoms are there? 6.022 into 23. मैं इसको यही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो now it will be 6.022 into 10 to raised to power 23. ओके, 24 को कट करके मैंने ऊपर कर दिया, इन दो जीरो को मैंने इधर ऐड कर दिया। नाउ माय आंसर इज 2 into 6.022 अपॉन 4.12। तो इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 24 एंड इट इज 1। इट मीन्स इट इज 20 into 6 अपॉन 4.12। 4 की टेबल से इसको कट करके तो 5, और आपके पास में अप्रोक्सीमेटली ये 20 हो गया है 6, ये आंसर आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 120/5 120/4 अप्रोक्सीमेटली 30 के इक्वल आएगा एंड द एग्जैक्ट आंसर इज 29.23। ओके, इट इज द
but you can proceed with the approximate answer. So now again I have all the requirements. The formula of density is equal to d is equal to z into m upon na into a cube. It means आपको a cube की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो now what is the value of a cube? a cube की वैल्यू के लिए इसको इधर चेंज कर देते हैं, z into m upon na into d. And what is the value of z? The value of z is equal to 4. The atomic mass is approximately 30. Okay, and Na is fixed 6.022 into 10 raised to power 23. And at the last density is also given in the numerical, that is 7.2. After solving the numerical, your answer will be 299.9 into 10 raised to power minus 30 picometer, or 299.99 picometer, or you can write 300 picometer. So this is the simplest example of density and edge length. Now our next numerical, in which we will calculate atomic mass of an element. In this numerical, an element crystallizes in BCC structure. It means now the value of Z is equal to 2 and having edge length of 288 picometer. It means A is given. The value of A is 288 picometer. तो मैं अभी इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सेंटीमीटर में. And density is given, which is equal to 7.3 gram per centimeter cube. Okay. Now we have to calculate the value of m. So now m is equal to b into na into a cube upon में z. So now we have all the values. Now put the value in the formula. It is very simple numerical. The density is 7.3. Na is 6.022 into 10 raised to 23, and the edge length is equal to 288 into 10 raised to power minus 10 cube. And what is the value of z? It is 2. After solving, the answer will become 52.5 gram per mole. A very simple numerical for us. Similarly, अगले टाइप के अंदर आप लोग पार्टिकल की नेचर निकालेंगे कि किस यूनिट सेल के अंदर वो आपका एडजस्ट है. तो न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 20th, and it is on page number 70. In this numerical we are discussing about molecule of KBr or crystal of KBr. In this, the density of KBr is given, which is 2.73 gram per centimeter cube. Okay, and the edge length given is 654 picometer. इसको यहीं कन्वर्ट कर देते हैं 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर. पिकोमीटर को रिमूव कर देता हूं. एंड नाउ predict the nature of the particular crystal. अब आपको इसके लिए एटॉमिक मास चाहिए जो कि गिवन है. K का एटॉमिक मास 39 और Br का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 80. और आप इसको जोड़ोगे तो मोलर मास विल बी 39 प्लस 80, दैट इज इक्वल टू 119. नाउ इट इज वेरी मच इजियर फॉर अस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? आपको Z कैलकुलेट करना है. तो नाउ द फॉर्मूला इज D into Na into a cube upon molar mass. What is the value of D? The value of D is 2.73. Na is 6.022 multiplied by 10 raised to power 23, and edge length is 654 into 10 raised to power minus 10 whole cube, and upon में आपके पास एटॉमिक मास है molecular mass है 119. After solving this, our answer is 3.87. See this carefully. आंसर 3.87 आ गया है, जबकि आंसर तो ऑब्वियस है, पॉइंट्स में हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी जो यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल थे वो या तो एक था या दो थे या चार थे. तो ये किसके नियर बाय है? दैट इज इक्वल टू 4. तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 नंबर में, और 4 नंबर का मतलब है कि द क्रिस्टल और द यूनिट सेल टाइप इज FCC. तो ये इस टाइप से मैंने आपको सभी टाइप के एग्जाम्पल बताए हैं जो कि आपके इस फॉर्मूला से सॉल्व हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज डेंसिटी, सेकंड वन नंबर ऑफ पार्टिकल, एज लेंथ एंड मोलर मास और एटॉमिक मास. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड. व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफेक्शन? इम्परफेक्शन मीन डिफेक्ट्स. तो
तो क्रिस्टल्स में या सॉलिड्स में डिफेक्ट किस टाइप का होता है? तो क्रिस्टल बनते हैं या तो एटम्स के जुड़ने से, या मॉलिक्यूल के जुड़ने से, और या आयंस के जुड़ने से। तो अगर वहां से आपके एटम का, मॉलिक्यूल का या आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, या वो क्रिस्टल को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसकी वजह से डिफेक्ट आ जाता है। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आयनिक कंपाउंड को कंसिडर करता हूँ। नाउ इट इज एन आयनिक कंपाउंड इन विच A पॉजिटिव इज कैटायन एंड B नेगेटिव इज एनायन। ओके, तो अगर मान लीजिए किसी भी क्रिस्टल में से A प्लस चले जाए या B माइनस चले जाए या एक्स्ट्रा आ जाए इन इंटरस्टिशियल साइड्स में, ये जो दिख रही है आपको खाली जगह, बीच की जो जगह मैंने आपको बताई थी वॉइड्स, इनमें अगर एक्स्ट्रा आयंस आ जाए तो भी आपके डिफेक्ट हो जाते हैं। और जो डिफेक्टेड क्रिस्टल होता है उसे कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। जनरली ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी भी क्रिस्टल को ज्यादा गर्मी में रखते हैं तो वहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां कैटायन या एनायन जो है वो लेटाइस को या क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं। एंड सो दीज डिफेक्ट्स आर आल्सो नोन एज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। इट मींस दे आर अराइजिंग ड्यू टू हीटिंग, सो दीज आर नोन एज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। ओके, तो स्टार्ट विद द टाइप। देयर आर 3 टाइप्स in which the first is stoichiometric. Stoichiometric means ratio, as you know, stoichiometric. The second one is non-stoichiometric, and the third one is impurity. Let's start with the first example, stoichiometric defect. Stoichiometric defect में डिफेक्ट के बाद भी जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक क्रिस्टल है जिसमें 100 कैटायन है और 100 एनायन है। अगर 100 कैटायंस हैं और 100 एनायंस हैं तो व्हाट इज द रेशियो? द रेशियो इज 1:1। अगर मैं आपको कह दूं कि 10 कैटायन चले गए क्रिस्टल को छोड़कर किसी भी वजह से और 10 एनायन चले गए, नाउ व्हाट इज द न्यू नंबर? इट इज 90:90, और अगेन यू कैन से इट इज 1:1। तो अगर डिफेक्ट के बाद भी आपका रेशियो चेंज नहीं होता है तो उसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये 2 टाइप से हो सकता है। एक टाइप तो मैंने बता दिया आपको, उसको आप लोग कहते हैं, फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। अगर आप एटम की बात कर रहे हैं तो इसे आप हाँ जी वैकेंसी कहते हैं, बट इफ यू आर कंसीडरिंग एन आयनिक कंपाउंड, जैसा कि मैं आयनिक ही पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप आयनिक कंपाउंड कहते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन जो है वो लेटाइस को छोड़कर चले जाते हैं, और ये उनके अंदर होता है जिनमें कैटायंस का और एनायन का जो साइज है वो लगभग इक्वल है। एग्जांपल NaCl में और KCl में। तो अगेन आई एम सेइंग व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन विल लीव द लेटाइस और क्रिस्टल। तो इसके बाद में रेशियो रहेगा सेम। तो अब मैं इसको बना के भी दिखा देता हूँ। यहां से A चला गया, तो अगर इस क्रिस्टल की बात करते हैं तो हाउ मेनी A आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स इस क्रिस्टल में 8 कैटायंस हैं और 8 ही एनायंस हैं। अगर मैं यहाँ से 1 एनायन और चलो 2 कैटायन और 2 एनायन को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ कहीं से भी, नाउ माय न्यू रेशियो इज 6:6। बट इन बोथ द केसेस द स्टोइकियोमेट्रिक रिमेन सेम और द रेशियो रिमेन सेम। So it means in Schottky defect, equal number of cation and equal number of anion will leave the lattice. The second type is interstitial defect, or it is also known as Frankel defect. तो Schottky का जो सेकंड टाइप है वो इंटरस्टिशियल या फ्रैंकल डिफेक्ट है। अगर आप एटम या मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इंटरस्टिशियल, एंड इफ यू आर कंसीडरिंग आयनिक कंपाउंड देन इट विल बी फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, now I'm correcting this. What do you mean by Frankel or interstitial defect? In interstitial defect, the particular cation or particular anion will move to the interstitial side. आपको मैंने बताया था कि जो आपके सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल पार्टिकल्स को कितना भी पास पास रख लो उनके बीच में जगह बच जाएगी। ये मैंने थोड़ा दूर दूर रखे हुए हैं, पर अगर आप पास पास भी रखते हैं लाइक दिस, सी दिस, तो ये जो बीच में आपके पास खाली जगह बचती है दैट इज इंटरस्टिशियल साइड। ये जनरली छोटी होती है, इसलिए इनमें कैटायंस का मूवमेंट जल्दी हो जाता है बिकॉज कैटायंस आर स्मॉलर देन एनायंस। नाउ अगर मान लीजिए ये A यहां से उठ करके अपने किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए, तो नाउ व्हाट इज द चेंज? अगेन हाउ मेनी कैटायंस आर देयर? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैटायंस आर स्टिल 8 एंड एनायंस आर स्टिल 8। इट मींस अगर कोई आपका कैटायन
या एनायन इंटरस्टिशियल साइड में मूव कर जाएगा तो भी आपका जो रेशियो है कैटायन और एनायन का वो चेंज नहीं होगा। ये जनरली उनके अंदर होता है जिनके अंदर कैटायन और एनायन के साइड में डिफरेंस है। तो जनरली कैटायंस विल मूव टू द इंटरस्टिशियल साइड्स। एग्जांपल है इसका AgCl। हाँ, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और है, दैट इज AgBr। व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस एग्जांपल? AgBr के अंदर शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट मिलते हैं। ये आया भी हुआ है आपके बोर्ड की क्लासेस में, उसके अंदर आपसे ये पूछा गया था कि AgBr जो आपका है वो, हाँ जी, दोनों के अंदर AgBr जो है आपका वो दोनों डिफेक्ट शो करता है, दैट इज शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल। नाउ अवर सेकंड टाइप इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नाम से पता लग रहा है स्टोइकियोमेट्रिक में जो कैटायन और एनायन है उनका रेशियो सेम था। नाउ इन दिस केस द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आफ्टर द डिफेक्ट मस्ट बी चेंज। इट मीन्स अब यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। अगर मेरे पास 100 कैटायन है और 100 एनायंस हैं, ओके, नाउ द रेशियो इज 1:1। हो सकता है डिफेक्ट के बाद मेरे पास 100 कैटायंस है बट मे बी 90 ये, तो नाउ द रेशियो इज 10:9। या हो सकता है ये 90 है और ये 100 है, दैट इज 9:10। इट मीन्स नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर आपके पास जो है डिफेक्ट के बाद कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, इसके दो टाइप है। द फर्स्ट टाइप इज, हाँ जी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड द सेकंड टाइप इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें भी दो टाइप है। फर्स्ट टाइप आपके पास में है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनायन। ओके, तो मेटल एक्सेस मींस मेटल ज्यादा हो गया। जनरली आपको पता होगा मेटल पे पॉजिटिव ही होता है, तो इट मींस पॉजिटिव ज्यादा कैसे हो सकते हैं? दो तरीकों से, या तो पॉजिटिव आ जाए और या नेगेटिव चले जाएं। तो फर्स्ट नंबर पे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनायन। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। तो मेटल एक्सेस में दो टाइप है। फर्स्ट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनायन। अब एनायन की बात करते हैं। ये एक क्रिस्टल है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन, दैट इज 8:8। अब मान लेते हैं, चलो बी कह देता है मैं तो जा रहा हूं, मेरा दिल नहीं लग रहा है ना, तो क्रिस्टल भी क्या कहता है, चलो जाओ भाई आप जाओ, अगर आपका दिल नहीं लग रहा तो कौन रुकेगा, है ना। तो यहां से बी जाने लगता है। ओके, तो जब बी नेगेटिव यहां से जाने लगता है तो क्रिस्टल इसको पकड़ लेता है, हाँ भाई कहाँ जा रहा है। तो बी नेगेटिव क्या कहता है, आपने तो कहा था कि चले जाओ, बिकॉज इट इज लिविंग द लेटाइस। तो क्रिस्टल कहता है मैंने आपको कहा था, चार्ज को ले जाने के लिए नहीं कहा था। इट मीन्स मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि बी जा सकता है लेकिन चार्ज नहीं जा सकता। इट मीन्स बी हैव टू लूज इट्स चार्ज इन द क्रिस्टल। तो क्या चार्ज है बी के ऊपर, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो बी अपना इलेक्ट्रॉन इस साइड में यहाँ छोड़ करके चला जाता है। बट नाउ व्हाट इज द रेशियो, चलो एक और बी निकाल देते हैं कहीं से। नाउ दिस बी इज रिमूव्ड। नाउ हाउ मेनी कैटायंस आर देयर, नाउ 8, but how many anions are there, 1 2 3 4 5 6। एनायन में इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि एनायन तो बी था, वो चला गया। ओके, नाउ इट इज 8:6। बिफोर डिफेक्ट द रेशियो इज 8:8 एंड आफ्टर द डिफेक्ट द रेशियो इज 8:6। इट मीन्स इट इज वेरी मच क्लियर कि आपका जो डिफेक्ट के बाद में रेशियो है वो चेंज हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज, हाँ जी, द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफेक्ट की बात करते हैं। आपके हिसाब से डिफेक्ट अच्छे हैं कि बेकार? तो ऑब्वियस है बेकार, क्योंकि कोई डिफेक्ट की बात कर रहा है। जैसे कोई क्या दे, क्या तेरे माइंड में डिफेक्ट है, तो इट मीन्स इट इज वेरी मच क्लियर कि डिफेक्ट इज नॉट गुड थिंग, बट द आंसर इज, हाँ जी, रिवर्स। डिफेक्ट्स आर गुड फॉर ए पर्टिकुलर क्रिस्टल। एक्चुअली डिफेक्ट में आपके पास किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टल की 2 या 4 जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो बी के जाने से क्रिस्टल को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसकी 4 या 5 प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज हो गई है। जैसे एग्जांपल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आने से अब ये थर्मल कंडक्टिविटी शो कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नाउ द क्रिस्टल विल बिकम कलर्ड। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाली साइट्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका क्रिस्टल कलर्ड हो जाएगा, और इसीलिए इनको एक नाम भी दिया गया है, दैट इज एफ सेंटर। एफ मीन्स फॉर बेंजेंटर, और ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर। अगेन आई एम रिपीटिंग, एफ मीन्स फॉर बेंजेंटर विच इज ए जर्मन वर्ड एंड विच मीन्स कलर। तो व्हाट इज, हाँ जी, द विच पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, दैट इज एफ सेंटर। तो इस पर एक क्वेश्चन भी बनता है, दैट प्योर NaCl इज कलरलेस,
but impure NaCl is pale in color or yellow in color. Similarly, pure KCl is colorless, but impure KCl is violet in color. And the answer is due to F center, if 1 mark question is there. So this is the main thing regarding this. But what is the second reason? तो पहले क्रिस्टल को थोड़ा ठीक कर ले, जो गड़बड़ करी थी मैंने. Again, this is the perfect crystal. Now I am explaining the second type. The second type cation एक्सेस में कैसे हो सकते हैं, मेटल एक्सेस में कैसे हो सकता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. ओके, अब ये एक्स्ट्रा कैटायन कैसे आ सकते हैं या कहाँ आ सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी भी क्रिस्टल का रिफॉर्मेशन कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं, या वो दोबारा बन रहा है किसी भी वजह से, या मान लीजिए हीटिंग के टाइम क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, तब एक्स्ट्रा कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स में आकर के बैठ जाते हैं. ओके, नाउ हाउ मेनी कैटायंस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 which are present in the interstitial site. Now my ratio is 10:8. Before the defect it is 8:8. Again I am showing the ratio is changing, है ना, रेशियो बदल रहा है यहाँ पर, तो क्लियर कट बात है. लेकिन इसका एग्जांपल है जेडएनओ. जब आप जेडएनओ को गर्म करते हैं तो जेडएनओ आप लोगों का येलो हो जाता है. ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई जेडएनओ बिकम्स येलो ऑन हीटिंग. तो आपको आंसर लिख के आना होता है ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ओनली 1 मार्क क्वेश्चन. जेडएनओ को गर्म करते ही आपके पास बनता है Zn+2 और साथ में बनती है ऑक्सीजन. अगर आप इसे बैलेंस करते हैं तो ये ऑक्सीजन के चले जाने से कैटायन ज्यादा हो जाते हैं, ऑब्वियस बात है. और कैटायन के ज्यादा होने, यहाँ ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में जा रही है, इस बात का ध्यान रखें. तो Zn+2 के ज्यादा होते ही आपके ये Zn रिफॉर्म करते हैं क्रिस्टल को और इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट हो जाते हैं. तो दिस इज द सेकेंड टाइप, दैट इज प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. The third type is, the second, there are only 2 types, and the second type of non-stoichiometric is metal deficiency defect. Now what is metal deficiency defect? It means cations कम हो जाएंगे. Okay, so again I am correcting the structure of crystal. Now it is a perfect crystal in which 8 cation and 8 anion are present. Now my second topic is metal deficiency defect. Okay, इन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो मेटल आयन है या कैटायन है वो कम हो जाएंगे. फिर से हमारे पास 2 तरीके हैं. द फर्स्ट वन इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैटायन, ओके, या डेफिशिएंसी ऑफ कैटायन. और जो सेकंड टाइप है आपके पास में ड्यू टू इंक्रीज इन, हाँ जी, नंबर ऑफ एनायन. पर जनरली एनायंस का नंबर इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एनायंस आर लार्जर इन साइज. ए पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले साइज में बड़े होते हैं, जबकि ये जो बीच की जगह मैंने अभी आपको बना के भी दिखाई थी वो छोटी होती है. तो जनरली इन्हें सेकंड टाइप नहीं होता, तो सिर्फ एक ही टाइप है कैटायंस के जाने से. तो चलिए कैटायंस को भगाते हैं क्रिस्टल से. अब फिर से किसी का दिल नहीं लग रहा, एंड नाउ हु इज दैट? दैट इज ए पॉजिटिव. फिर से क्रिस्टल कहता है जा भाई, दिल नहीं लग रहा तो जा. ए जाने लगता है, तो ए को फिर से हम ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. क्यों? बिकॉज ए जा रहा है हमारा चार्ज लेकर के. अब चार्ज के पीछे क्या गड़बड़ है, मैं दोबारा आपको दिखाता हूं, पिछले टॉपिक में रह गया. चार्ज के जाने से हो क्या जाएगा? चार्ज के जाने से नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाएगा. और जब नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाएगा या पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ जाएगा, अगर मान लो नेगेटिव जाता है तो इनमें रिपल्शन होगा. रिपल्शन की वजह से जो क्रिस्टल है वो आपका टूट जाएगा. इट मीन्स चाहे ए चला जाए बट द चार्ज मस्ट रिमेन सेम. चार्ज जो है क्रिस्टल में वो सेम रहना चाहिए या इक्वल रहना चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव. तो चलो ए को जाने देते हैं और अपने उसका प्लस रख लेते हैं. बट व्हाट इज प्लस? अब ये बड़ी एक समस्या आ गई कि प्लस क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्लस तो कुछ भी नहीं होता. प्लस तो इट मीन्स इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. बट हु कैन गिव द इलेक्ट्रॉन? क्योंकि बी नेगेटिव तो दे नहीं सकता अपना इलेक्ट्रॉन. अगर नेगेटिव देगा तो वो अकेला बी हो जाएगा, और बी अकेला एटम, न्यूट्रल एटम कभी भी क्रिस्टल में सर्वाइव नहीं करेगा. न्यूट्रल एटम को तो हम बाहर निकाल देंगे. तो अब इसको अपना चार्ज देगा ये. यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यहां से या आसपास के किसी भी ए एटम से चार्ज निकाल सकते हैं. चलो मैं दिखाता हूं. मान लीजिए इसका मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इट विल बिकम ए पॉजिटिव टू, एंड द चार्ज इज नाउ एब्सेंट हियर. नाउ वी कैन रिमूव द ए. अब ए को मैंने इस ग्रुप में से निकाल दिया है. पर बच्चा कहता है सर ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. जैसे एग्जांपल, कॉपर पे +1 भी होता है और कॉपर पे +2 भी होता है. सिमिलरली
Fe पे +2 भी होता है और Fe पे +3 भी होता है। अगर आप सोडियम की बात करोगे तो सोडियम के अंदर ये वाला डिफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोडियम की सिर्फ एक वैलेंसी होती है, दैट इज पॉजिटिव वन। ओके, नाउ हाउ मेनी केटाइंस आर देयर? 7. एंड हाउ मेनी एनाइंस आर देयर? 8. एंड अगेन द रेशियो इज चेंजिंग। So this is the second type of defect. Now our third defect is impurity defect. Impurity defect में आपको नाम से क्लियर होगा कि impurity it means we are mixing some type of impurity, बिल्कुल ऐसा ही होगा। impurity defect के अंदर किसी अदर टाइप के ऑफ cation या anion की impurity एडेड होगी। जैसे एग्जाम्पल, नाउ आई हैव ए क्रिस्टल ऑफ NaCl, 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 NaCl. Now I am adding impurity of strontium chloride. Okay, see carefully. Strontium chloride में we both have chloride ion common. Okay, it means chloride ion की वजह से तो कोई impurity नहीं होगी. But now strontium is coming in place of sodium ion. Okay, what is the charge on strontium? 2 क्लोरीन है, obvious है, +2. तो जब सोडियम को आपका स्ट्रोंशियम रिप्लेस करता है, लो जी एग्जाम्पल के लिए मैंने रिप्लेस कर दिया, तो अब आपको दिखेगा कि कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी दिखा जाए तो केटायन तो 8 है और एनायन भी 8 है ना, लेकिन स्ट्रोंशियम अपने साथ चार्ज कितना लेकर के आया? +2. इट मीन्स व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द चार्ज देयर इज अ डिफरेंस इन चार्ज ऑफ केटायन एंड एनायन। अब इस केस में द पॉजिटिव चार्ज इज 9 व्हाइल द नेगेटिव चार्ज इज 8। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या एम्फसिस करके आया हूँ, बहुत मैंने जी आपको बताया कि चार्ज मस्ट बी सेम, चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स गड़बड़ हो गई, तो अब क्या करना चाहिए? तो जब एक स्ट्रोंशियम सोडियम को रिप्लेस करता है तो ऑटोमेटिकली आपके क्रिस्टल में से 2 सोडियम गायब हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 स्ट्रोंशियम आ जाते हैं तो 4 सोडियम गायब हो जाते हैं। बट अब डिफेक्ट देखते हैं कहाँ पर है। तो एक स्ट्रोंशियम के आने से आपके पास एक वॉइड क्रिएट हो गया, दिस इज वॉइड। ओके, अगर 2 स्ट्रोंशियम आ जाते तो 2 वॉइड क्रिएट हो जाते और 10 आ जाते तो 10 क्रिएट हो जाते। इट मीन्स इफ आई एम एडिंग 0.25 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इन NaCl क्रिस्टल, हाउ मेनी वॉइड्स विल क्रिएटेड? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कह दोगे कि 1 से 1 वॉइड क्रिएट हुआ, एक स्ट्रोंशियम +2 के आने से 1 वॉइड क्रिएट हुआ, तो 0.25 मोल के आने से क्रिएट हो जाएंगे 0.25 mole voids. Similarly, if I am replacing sodium, again I am changing the numerical with a particular compound MCl3 where cation is M+3. अब आप बताइए क्या आइडिया लग रहा है? अब आपके सोडियम को रिप्लेस करना है M+3. इट मीन्स एक M के आने से टोटल मुझे 3 स्पेस चाहिए, एक जिसमें M आएगा और 2 स्पेस और चाहिए, एक इधर से और एक कहीं और से निकाल दीजिए। इट मीन्स M+3 इज क्रिएटिंग 2 वॉइड्स। तो अब सोच के बताइए, अगर 2 आ जाते तो वॉइड्स कितने हो जाते? 4। नाउ द माय क्वेश्चन इज सेम, आई एम डोपिंग NaCl crystal with 0.25 mole of a particular ionic compound MCl3. Now how many voids will be created in this NaCl crystal? So you will write that the number of void is equal to 2 into 0.25 mole, or that is equal to 0.50 mole voids. So it is clear? Sorry, is it clear? तो ये आपके सामने एक सिंपल टॉपिक है, इसको न्यूमेरिकल के साथ और कनेक्ट कर देता हूँ मैं आपके। दिस न्यूमेरिकल इज इन योर NCERT बुक, दैट NaCl is doped with 10⁻³ mole percent SrCl2. This is the question, that NaCl is doped with 10⁻³ mole percent SrCl2 crystal. Okay, now how many voids are present in this crystal? So number of voids is equal to the number of strontium ions, that is equal to 10⁻³ mole percent. First of all, remove the percent. Now I am removing the percent, that is dividing it by 100. Now it will become 10⁻⁵ mole. And how many atom or ions are in 1 mole? ये तो मैं पढ़ा करके आपको चित्र याद करवा चुका हूँ। 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 into 10⁻23 and into 10⁻⁵. Now how many voids are there? The total number of voids
are equal to this. So this is the numerical. If Hanji, it will change. Now if it will be MCl3, the number of voids will become double. If I am changing this, the number of voids will become double and it will become this. Okay. Thank you very much. This is all from this topic. Have a nice day.